Meanwhile, back home in India, it's an unprecedented outreach by the RSS chief Mohan Bhagwat. Over the last few days, he's held meetings with intellectuals and religious leaders of the Muslim community. The idea is to create an atmosphere of trust between the two communities at a time when even a madarsa and waqf property survey is being looked at with suspicion and is being used by political parties to foment a divide. In addition to meeting Muslim intellectuals earlier, today the RSS chief visited a mosque and a madarsa where he spoke to the children studying there. Earlier, another meeting was held at the RSS's Delhi office that stretched for over an hour. The meeting included former Chief Election Commissioner S.Y. Qureshi, former Delhi Lieutenant Governor Najib Jung, former AMU Vice Chancellor Lieutenant General Zameeruddin Shah, and RLD leader Shahid Siddiqui, among others. All issues, from the sensitivity around cow slaughter to vilification of Muslims, were discussed in these meetings. The effort remained, let's dial down the distrust and hostilities. जो पैगाम गया वो पैगाम मोहब्बत है। हमारे सबके धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी जातियां अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसान और इंसानियत है। भारत में रहते हैं हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारा मकसद सिर्फ यही है। We requested him for an appointment because we feel that RSS and Bhagwat ji have great influence on a large section of Indian society, and we are worried about the toxic environment which has been building up in the society, and we believe that we must talk about it, we must find solutions, we might find ways to bring down the temperature. सुबह 10 बजे वो आए, हमने उनको वेलकम किया और बताया कि वो पर्सनल विजिट के लिए आए हैं और स्टूडेंट से हमें मिले हमारे, और किस तरह से हम क्लास लेते हैं कुरान करीम की पढ़ने की, ये सारा उन्होंने देखा। बहुत सारी बातें उन्होंने पूछी भी कि क्या बनना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, और इस तालीम की, इस एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन कितनी ज़रूरी है आज के ज़माने में, ये भी उन्होंने मालूम किया और उस पर उन्होंने रोशनी डाली। Now, when a meeting like this happens, you would think that it would be welcomed by all, especially those who say that India is under danger and the RSS is promoting Islamophobia. Far from it, the focus today instead was on discrediting those who went to meet Mohan Bhagwat. The prominent Muslim voices were dismissed as inconsequential, irrelevant and elite. Some others scoffed at this outreach as empty tokenism. I'm only afraid that in fact RSS is the de facto government. Modi rule is working under instructions and guidance from RSS headquarters. If Bhagwat ji is sincere in bringing Muslim community into mainstream of the country, then he must question the Modi government as to why there is no proportionate representation given to Muslims. इलियासी साहब है, उन्होंने बहुत दिन पहले पूजनीय सरसंघ चालक जी से मिलकर निमंत्रण दिया था। वो बहुत दिन से पेंडिंग था और इसीलिए उनके निमंत्रण को स्वीकार करते हुए वो उनसे मिलने गए थे। और ये संघ के पूजनीय सरसंघ चालक समाज जीवन के सभी प्रकार के लोगों से मिलते रहते हैं और एक संवाद की जो सामान्य प्रक्रिया सतत संघ के द्वारा चलती रहती है, उसी का एक हिस्सा है ये। अभी किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है। अभी एक पहल हुई है, लेकिन सबसे पहले है कि आरएसएस को अपना विचारधारा बदलना पड़ेगा। जब तक उसका विचारधारा नहीं बदलता है तो इस तरह के आउटरीच से कोई फ़ायदा नहीं होगा। Rather than have the issues of employment, of food, of life, of health to come forward, they in fact are putting forward this polarization thing. भागवत जी, यही हिंदुस्तान है। आप भटक गए थे, अब आप सही राह पे हो और मेरा कहना मानो भागवत जी। प्लीज अप्रिशिएट, आई एम गिविंग यू गुड सजेशन। प्लीज कम एंड ज्वाइन भारत जोड़ो यात्रा अंडर द लीडरशिप ऑफ राहुल गांधी जी। आपको बड़ी आत्मिक शांति मिलेगी। तो आप आरएसएस के लोग ये बताओ
कि भारत के मुसलमान, ये जो सबका विश्वास का खेल है आपका, सबके विश्वास सबका साथ में मुसलमान कहां पे आ रहा है? So what possibly explains the criticism of even this exercise? Why would people criticize what is clearly an effort to try and meet the Muslim community halfway? Isn't it ridiculous that progressive Muslim voices also are now being cancelled only because they want to engage and not estrange? Or is this outright, this outreach scaring those whose very politics depends on and thrives on ensuring that Hindus and Muslims, far from engaging in a dialogue, stay at each other's throats? You're watching the News Hour at 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. All right, joining us on the debate, we have Ratan Sharda, author, Harshvardhan Tripathi, senior journalist, Maulana Sajid Rashidi, President All India Imam Association. But my first question is to Pavan Rao Ambedkar, national spokesperson of the AIMIM. After all these people have met, intellectuals, clerics, Mohan Bhagwat even went to a madarsa, everyone who met him has been cancelled. Why, Mr. Ambedkar? You should be welcoming this. You should be saying, great. Actually, they are not the intellectuals. They are the elite class persons. I have two objections. Two words used by two persons. One word is Rashtrapita, and second word is Mr. Mohan Bhagwat is more powerful. More powerful. What is the meaning of more powerful in democratic country? There is no meaning of the powerful in democratic. No individual can be more powerful than democracy. In a democracy, we the people of India are the most powerful in this country. That's why we are talking about that person who has no authority, who has no constitutional post, who has no any political right or political head. Whether but he has Mr. a right Mohan to meet people. Listen. So, Mr. Ambedkar, when he wasn't meeting anyone, you said, oh, he's a Hindu supremacist, he hates Muslims. Now he's meeting Muslims, you are like, these Muslims are also bad. एक कहावत है ना हिंदी में, दिखाने के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ और है. Now see the situation. Why Mohan Bhagwat is meeting with the elite class persons? Where were the elite class persons when the akhlaq was lynched? वो तो मदरसे में गए थे, मदरसे में कौन से elite बैठे हुए हैं? छोटे-छोटे बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ पे. और उन्हीं मदरसों में बैठे हुए हैं जिनको आप कहते हैं कि आरएसएस बंद करवाना चाहती है, बीजेपी बंद करवाना चाहती है, जिनको सिर्फ रिफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है. वो मदरसों में पढ़ते बच्चे कौन से एलीट थे? Yes, listen. The persons who are meeting with the Mohan Bhagwat ji are not authorized persons. They are not the representative of the people. Who decides who's the representative of Muslims? Yes, listen the answer. Who will authorize? Yes, they are not representing the people of this country, especially Muslims. Says who? Where were they? Where Says were who? they? Where were they? Says Where who? were they when Akhlaq was lynched? They were there protesting. When the Altaf was General lynched? Zamiruddin Shah was there seeking justice. No. Yes, he was. They were S.I. Qureshi has been our chief election commissioner. He has been a vocal advocate of Muslim rights. And today, he is a nobody. He is not even a Muslim according to you. No. They are Muslim, but in the reference... सच्चे मुसलमान नहीं. I am not telling the सच्चे मुसलमान या झूठे मुसलमान. I am telling they are not the representing the people of this country, especially Muslims. Sir, ये कौन सा एगमार्क का ये थप्पा लगता है कि कोई आकर के वहां सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है वो कह रही है कि these are the real Muslims, these are the representative Muslims, these are the fake Muslims, these are the elite Muslims. Who will decide, sir? Whether they have the right, whether they are the head of any political party, whether they are the head of तो any political party ही represent करती है मुसलमानों को. Yes, definitely. We political party and religious institutions have the right to rise the. ये ठेका किसने दिया? No individual. Whether they are not aware of the ideology of RSS, whether they are not aware of the ideology of RSS, I want to show you the reality of the RSS.
see the situation. Sir, before you come to the reality, because then that is a very wide-ranging debate. वो reality वो है जो आप देखना चाहते हैं. A man is literally sitting here saying, "Come talk to me. I want to talk to Muslims." You're like, ये तो real नहीं है. ये real है. ये जो मैं पन्ने पे लिख के लाया हूँ, which I want to believe is the reality. ये real है. आप बात करना चाहते हो आरएसएस से, आप सच्चे मुसलमान नहीं. आप आरएसएस को गाली दे रहे हो, आप सबसे अच्छे मुसलमान हो. Who decides this? This country, whether they will solve the problem of this country, whether they will you solve the problem of this country? How long has AIMIM been around? मुसलमानों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? Yes. Now the question: why they are not meeting with the Prime Minister of India? अरे sir, you are jumping from goalpost to goalpost. Okay, चलिए, let's address all of your issues one by one. Ratan Sharda, first you answered the question कि these are token Muslims. Pawan Rao Ambedkar has said Pawan Rao Ambedkar is representative of Muslims, but a Shahid Siddiqui is not representative of Muslims. S.Y. Qureshi is not representative of Muslims. Ratan Sharda. Owaisi is trying very hard. Owaisi and friends are trying very hard to hijack the entire Muslim platform. They want to be the new jinnahs of a Muslim community which is always under agitation, always ready to create problems. This is from that class. They don't Sir, मैंने आपको टोका नहीं था अम्बेडकर जी. अब मैं आगे और बताता हूँ. He talked of elite class. He talked of who is going to represent. Does he know what Dr. Ambedkar said about Dalits having tie-up with the Muslims and with the Razakars? He would not like to talk about that. I didn't want to make it personal, but he should know what Ambedkar's view were about tie-up with the Muslims. Very clearly, he talks of elite class. Who was Jinnah? Who were the people who got partitioned in all elite class? Who are your inspirations? Who was Qasim Rizvi, your forefather of Razakar? Which class he belonged to? To Nizam's class. So your class, talk of this elite class and all is so bogus. And in a democracy, be very sure politics is not one all for everybody. It is society, it is social organizations which actually strengthen the democracy. Very dependent on politics, you are doomed. These people from bylanes of Hyderabad want to rule over India in the name of dividing Hindus and Muslims. And very clearly, Owaisi's thought comes from the position where a book says that you cannot be friends with non-Muslims. Please go ahead. I will not quote exact ayat because I am not supposed to quote any holy book. But it is there. You can't challenge that. So if that is so, then my dear friend, you are living in India and Dr. Ambedkar talked about exchange of population. Did you support that? Do you support that today? And do you deny the role of Razakars and your forefathers like Qasim Rizvi in persecution of Hindus in Hyderabad state and asking not Nizam to go with India but go with Pakistan? So you have never denied it. You have never apologized for that. So don't tell me what politics is. India is much bigger than politics. First of all, I tell you, much bigger than Mr. Sharda, Mr. Ratan Sharda, I just tell you in Hindi, ये रजाकारों की पार्टी नहीं है. हम कंडेम करते हैं. We extremely condemn. This is not the party of Rajakars. This is not the party of Rajakars. Why are you not talking about those people who met the Mohan Bhagwat? Whether Mohan Bhagwat has the capacity to solve the problem of this country? Whether capacity, your entire behavior. Why the people are not meeting with the Prime Minister of India? Why the people are not raising the voice in front of the mutual dialogue? Why they are not meeting with the Prime Minister? Why Mr. Ambedkar, let me just ask you one question. You are saying कि असल मुसलमानों का नेता वही होगा जो मुसलमानों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका होगा. इन लोगों ने कुछ नहीं किया सॉल्व करने के लिए, तो ये नेता नहीं हो सकते, ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते. They cannot speak on your behalf. Tell me, has the AIMIM solved all problems of Muslims? Listen carefully. If not, then how can you claim to be representative of Muslims? Listen carefully. I am telling that those people who are meeting with the Mr. Mohan Bhagwat is not in capacity to solve the problem. They have to meet with the Prime Minister. They have done their own bit for this country. General Shah has been our Vice Chief of Army. We've had Shahid Siddiqui. He is the editor of one of the oldest dailies. We've had him as a member of Parliament. And today, according to you, all these people count for nothing. Why are you not telling that they are not meeting with the legal persons? Mr. Ambedkar doesn't know any reason to answer. What does he believe in Dr. Ambedkar? पहले आप बताइए, Ambedkar है ना? आप बताइए, आप Dr. Ambedkar को डिनाई कर रहे हैं?
आप सुन लीजिए बाबा साहब के बाबा अम्बेडकर सुन लीजिए बाबा, अरे सुनिए, बाबा साहब की किताब पढ़िए, हिम्मत है तो बोलिए, किताब पढ़ लीजिए, रिडल्स इन हिंदुइज्म पढ़ने दिमाग खुल जाएगा। रिडल्स इन हिंदुइज्म चाहिए और उसको पढ़िए, दिमाग खुल जाएगा। मत करो, वो सही है, दिमाग खुल जाएगा। रिडल्स इन हिंदुइज्म, यू आर टॉकिंग फेवरेबल स्टेटमेंट, यू आर टॉकिंग फेवरेबल स्टेटमेंट। यू आर राइट सर, सबको सब किताबें पढ़नी चाहिए, पर आपको भी और जो लोग देख रहे हैं उनको भी बाबा साहेब अम्बेडकर थॉट्स ऑन पाकिस्तान भी पढ़नी चाहिए। बट एनीवे, दिस इज नॉट अबाउट बुक्स एंड व्हाट इज रिटन देयर, इट इज अबाउट द simple question that do you want to put people in a box permanently, and when they uncomfortably try and step out of that box, you are like, nah, not allowed, because we want to demonize you, we will always stereotype you as this. So Mohan Bhagwat has to be a Muslim hater. If he meets Muslims, then you will discredit that as well. हर्षवर्धन त्रिपाठी, मोहन भागवत जी से मिल करके कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? पवन राव अंबेडकर बोल रहे हैं, क्या वो प्रधानमंत्री हैं, क्या वो राष्ट्रपति हैं, क्या वो होम मिनिस्टर हैं? उनसे मिलने का क्या फायदा है? कुछ सॉल्व तो होना नहीं है टोकनिज्म में। व्हाट्स द यूज? मुझे एक तो छोटा सा निवेदन है कि बीच में बोले नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है बोलने की, तो बात जब नहीं होती है तभी बीच में आदमी बोलता है। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, और ये सवाल जो आ रहा है कि क्या वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किस हैसियत में हैं, उनकी अथॉरिटी क्या है। मुझे लगता है कि डॉक्टर मोहन राव भागवत ने इन जो मुस्लिम लोग हैं, जो खास करके जो बहुत प्रभावशाली अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने वाले जो मुसलमान हैं, और आज तो जो मिले इलियासी साहब से, वो तो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ क्लरिक हैं, उनसे मिलकर देश के हर कट्टर को परेशान कर दिया। हर वो कट्टर जो चाहता था कि इस देश में कम्युनलिज्म हो, इस देश में हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे, इस देश में सड़कों पर संघर्ष होता रहे, इस देश को लेकर दुनिया भर में उसी तरह से चर्चा हो, उस हर व्यक्ति को उन्होंने परेशान कर दिया। वरना आप सोचिए, राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा पे हैं, हर जगह उनकी जो रैली है उसमें वो दो बातें बोलते हैं, संघ ने सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है और संघ मुस्लिमों के खिलाफ खड़ा है। वो ऐसी क्या बोलते हैं, संघ पूरे देश में हिंदू और मुसलमान के खिलाफ बांटने की, जहर भरने की लड़ाई लड़ा है। ऐसे में जब डॉक्टर मोहन राव भागवत, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक है, और ये पहली बार उन्होंने ये प्रयास नहीं किया है, वो बार बार एक बात कहते हैं कि हिंदू संगठन करना, हिंदू एकता करना वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आधार है, लेकिन हम भारतीयों को लेकर विश्व मंच पर जाएंगे, हम भारतीय के तौर पर कैसे व्यवहार करते हैं, ये बेहतर हो, वो छवि अच्छी जाए, ये हम दुनिया को दिखाएंगे। और अगर इसके लिए वो 2018 में भी विज्ञान भवन में उन्होंने सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया, उसके बाद भी लगातार गए, संघ ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया, और अभी भी अगर नजीब जंग, ऐशवाई कुरैशी और इलियासी साहब जैसे लोग ये मुस्लिमों के प्रतिनिधि नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस देश में कोई भी जो जिहाद फैलाएगा, जो कट्टरता फैलाएगा, जो इस्लामिक कट्टरता को ही सब कुछ बताएगा मुसलमानों के लिए, वो मुसलमानों का सच्चा प्रतिनिधि नहीं हो सकता। और ऐसे लोग बौखलाए हुए हैं, परेशान, कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं साजिद रशीदी साहब, क्योंकि अगर आपको रेलेवेंट रहना है, आप चाहेंगे कि हिंदुओं की तरफ से भी जो मुट्ठी भर कट्टरपंथी हैं वो भी एक्टिव रहें। मोहन भागवत जी ने क्या बोला है? पहले उन्होंने बोला है दैट देयर कैन बी नो इंडिया विदाउट मुस्लिम्स इन इट। देन ही सेड कि ये सही नहीं है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाशा जाया। फिर उन्होंने बोला कि we condemn people who in the name of cow protection go out and kill Muslims। वो कट्टरपंथी जो हैं लगातार उनके खिलाफ बोलते आए हैं। आज भी जो मीटिंग हुई है उसमें यह बताया जा रहा है कि उन्होंने जाकर के बोला कि स्टीरियोटाइपिंग ऑफ मुस्लिम्स इज रॉन्ग, स्टीरियोटाइपिंग, प्रोपेगेंडा, विलिफिकेशन नहीं किया जाना चाहिए। आपको तो खुशी होनी चाहिए सर कि जो कट्टरपंथी हैं, जो विलिफिकेशन हो रहा है, उसको मोहन भागवत अमंग हिंदूज रोकने की भी बात कर रहे हैं। देखिए मैडम, मैं आपको दो तीन बात क्लेरिफाई कर देता हूँ। एक तो ये जो शाहिद सिद्दीकी वगैरह की मीटिंग हुई थी मोहन भागवत जी से, वो 2-2.5 महीने पहले की मीटिंग है, आज मीटिंग नहीं हुई। नंबर एक, आज जो उमैर इलियासी के यहाँ मोहन भागवत पहुँचे हैं, उनके फादर की
उनके फादर की सालगिरह थी जो होता है, उस पर वो गए थे, समझे नहीं। वहाँ कोई मुसलमानों से मिलना या कोई ऐसा एम नहीं था कि भाई वहाँ जाकर कोई ऐसा संदेश दिया जाए। ये बात क्यों बढ़ी? ये बात जब बढ़ी जब उमर इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कह दिया, राष्ट्र ऋषि कह दिया। मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूं, ये जितने भी मोहन भागवत के जानने और मानने वाले बैठे हुए हैं, क्या मोहन भागवत जी को राष्ट्रपिता कहना ये सही है? ये काउंटर क्वेश्चन मेरा है। दूसरी बात, अब ये उमर इलियासी से एड्रेस कीजिए ना। अब ये मोहन भागवत की तो प्रॉब्लम है नहीं कि उनको उमर इलियासी साहब क्या बुलाना चाहते हैं ना। That's why we are telling. That's why we are telling. आप मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। हाँ, पूरी कीजिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए ना, मेरी बात पूरी होने दीजिए। दूसरी बात यह है, आप जिन लोगों को ये कहना चाह रहे हैं, देखिए मैं इस पर नहीं जाता कि शाहिद सिद्दीकी क्या हैं, एसवाई कुरैशी क्या हैं, वो अपनी फील्ड में अच्छा काम उन्होंने किया है और वो मुसलमानों में अच्छी नज़र से देखे जाते हैं। लेकिन आज जिस आदमी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहा है, उसकी लाइबिलिटी आप इससे चेक कर लीजिए कि जो आदमी महात्मा गांधी जी को नकार कर एक ऐसे आदमी को राष्ट्रपिता कह रहा है, जिस आदमी ने बार बार ये कहा है कि हर हिंदुस्तानी हिंदू है, हर हिंदुस्तानी हिंदू है कि ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी। मतलब पूरी रामायण में आपको प्रॉब्लम बस यही थी कि थोड़ी ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो जाए। इतनी बड़ी मीटिंग हो गई सर, इतना बड़ा आउटरीच हो गया, आपने उमर इलियासी साहब ने राष्ट्रपिता क्यों बोला? ये नुक्स निकाल रहे हैं आप। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के इसका तो जवाब दे ही दीजिए। सबको सुना, लेकिन आप पद्मजा बार देखिए, आप एक बात समझिए, बात तो पूरा होने दीजिए ना। ये राष्ट्रपिता या राष्ट्र ऋषि, इसका एड्रेस कर लेने दीजिए हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब ने, अरे भाई साहब, अगर इलियासी साहब ने डॉक्टर मोहन राव भागवत के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया, इसका मतलब कि उनके मन में वो सम्मान का भाव रहा होगा। और देश में बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि डॉक्टर मोहन राव भागवत राष्ट्र ऋषि जैसे हैं, उनके जीवन व्यवहार को लेकर वो जिस तरह से रहते हैं, और जब से वो सरसंघ चालक बने, मैं ढेरों ऐसे वाकये गिना सकता हूं कि जब आरोप लगाने वाले लगातार संघ को एक सींखचे में, एक दायरे में, एक खांचे में बांधने की कोशिश करते हैं, तो संघ उस दायरे को तोड़कर निकल जाता है। और ये सवाल इसलिए बड़ा हो रहा है कि क्या संघ का सबके साथ, ये तो अच्छी बात है ना कि कुछ ऐसा बोला गया दोनों के बीच में कि हॉस्टिलिटी। आप खुश रहते अगर वो कहते हैं कि ये तो इस्लामोफोबिक हैं, ये तो मुस्लिम हेटर हैं। अब वो कह रहे हैं कि राष्ट्र ऋषि है। राष्ट्र ऋषि कैसे बोल दिया साजिद? मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को। अच्छी बात मैंने कब बोला है कि अगर वो ऐसा बोलते तो मैं खुश होता? मैंने तो नहीं बोला ऐसा। मैं सिर्फ ये, आप सुनिए ना, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, आप बार बार मुझे टोक रही हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये राष्ट्रपिता उमर इलियासी के हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं उनके, धर्मेंद्र जी के पिता हो सकते हैं, हर्षवर्धन जी के पिता हो सकते हैं, या जो और लोग बैठे हैं यहाँ आरएसएस से जुड़े उनके पिता हो सकते हैं। राष्ट्रपिता तो नहीं है। चलिए ठीक है, जो लोग इनको राष्ट्रपिता कह रहे हैं वो महात्मा गांधी को नकार रहे हैं, वो गोडसे की थ्योरी ला रहे हैं, वो गोडसे की थ्योरी ला रहे हैं देश के अंदर। रशीदी जी की है, यही समस्या है जो इलियासी साहब। अरे आप मानते हैं क्या? आप मानते हैं कि उनको राष्ट्रपिता, ये समझना जरूरी है। राष्ट्रपिता मानते हैं क्या? किसी एक के पिता आप राष्ट्रपिता मानते हैं क्या? नहीं हो सकते। इस हर्षवर्धन आप राष्ट्रपिता मानते हैं क्या? बोलिए ना, आप अपनी जुबान से क्यों नहीं बोलते? क्या होगा रशीदी साहब, आप अपनी जुबान से क्यों नहीं बोलते कि हाँ वो राष्ट्रपिता है? बोलिए। मैं बोल दूं। रतन शारदा जी, रतन शारदा जी भी आपको कुछ बताना चाहते हैं। मिस्टर शारदा, आप क्यों नहीं बोलते? बोलने वाले इलियासी क्या मोहन भागवत जी ने उसको स्वीकार किया? अरे मैं बोलता हूँ ना, बोलता हूँ मौलाना साहब, बोलता हूँ। देखिए, पहला प्रॉब्लम ये है कि ये जो यहाँ बैठे हैं, इनको हिंदू मुस्लिम समाज मौलानाओं और मौलवियों की पकड़ से पढ़े लिखे लोग जाना स्वीकार नहीं है। इसके लिए जितने भी लोग मिले ये भागवत जी को, इनसे उनका विरोध है। जहां तक उनको राष्ट्रपिता राष्ट्रऋषि कहने का सवाल है, संघ के 97 साल के इतिहास में किसी भी, सुनिए, अरे बात सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई साहब, मेरा विरोध नहीं है उनसे। अरे सुन तो लीजिए। से विरोध नहीं। अरे भाई, अच्छा चलिए अगली मीटिंग आपको भी करनी चाहिए मोहन भागवत जी से। आप नहीं विरोध करते ना, प्रेम है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। ऐसे मौलाना को जानता हूँ जिन्होंने मुझे कहा है कि मुझे मोहन भागवत जी से मिलवाइए। दूसरी बात, 97, अरे प्लीज आप उनको राष्ट्रपिता मानते हैं क्या? अरे वही तो जवाब दे रहा हूँ ना। आप उनको राष्ट्रपिता मानते हैं क्या? अरे वही हर्षवर्धन को राष्ट्रपिता मानते हैं? अच्छा चलिए सवाल पूछ लिया, जवाब देने दीजिए। ओके, रतन शारदा, कम ऑन।
मैंने क्या कहा, 97 साल के इतिहास में कभी भी आरएसएस के किसी लीडर ने कोई पदवी धारण नहीं की, किसी स्वयंसेवक ने आरएसएस की लीडर को कोई पदवी नहीं दी। और मैं कहता हूं कि उनको राष्ट्रपिता की उपाधि ना चाहिए, ना हम मानते हैं। अरे कह दिया ना भी आपको, अब शांति रखिए। हम कहते हैं हम नहीं बोलते किसी को, हम किसी को खुदा नहीं बोलते, हम किसी को प्रॉफिट नहीं बोलते। संघ के अंदर किसी भी अधिकारी को राष्ट्रपिता वगैरह वगैरह कहने का ना हम मानते हैं ना वो मानते हैं। कृपया आरएसएस की हिस्ट्री देख लीजिए 97 ईयर्स की। मैंने बोल दिया, फिर भी बोले जा रहे हैं। अरे आपका पेट क्यों? चलिए, अगर कोई पदवी दे रहा है, पवन राव अंबेडकर जी, मोहन भागवत ने कभी नहीं बोला कि हमें राष्ट्रपिता को का दर्जा चाहिए या गांधी जी का हम राइवल कर रहे हैं। अगर ये कोई पदवी देता है, अगर ये प्रेम से कोई बोलता है, ये उनकी मर्जी है। द लार्जर पिक्चर हाउएवर मस्ट नॉट बी फॉरगॉटन। द फैक्ट दैट दिस इज कमिंग at a time, and let me quote to you from reports about an earlier meeting that took place between these intellectuals and between Mohan Bhagwat. Very candidly he is saying कि देखिए, काउ स्लॉटर से हमारी सेंसिटिविटीज जुड़ी हुई हैं, we should have sensitivities about how other people feel. He says कि आप नॉन मुस्लिम्स को काफिर मत बोला कीजिए। तो इन लोगों ने बोला मोहन भागवत जी को कि काफिर जो लफ्ज है वो इंडिया को बिलोंग नहीं करता, वो बाहर से आया है, और किसी को काफिर बोलना ये हमारे मजहब का हिस्सा नहीं है। दिस इज द डायलॉग दैट इज नीडेड, राइट? या हमेशा एक दूसरे के गले पे पकड़े रहेंगे? डायलॉग ही तो अच्छी बात है ना डायलॉग। टुडे द आरएसएस इज सेइंग कि ओवैसी साहब मिलना चाहते हैं, आप मिलिए मोहन भागवत से। यस आंसर सुनिए, आप आंसर सुन लीजिए ना। शारदा साहब होल्ड ऑन, शारदा साहब होल्ड ऑन, सारी राजनीतिक जीवन, शारदा साहब सुन लीजिए, आंसर सुन लीजिए। पद्मजा जी काइंडली इनको बोलने दीजिए। काइंडली मैं एक बिंदु पे आता हूं। पहले आपने कहा कि मोहन भागवत साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि यह देश बिना मुस्लिम्स के नहीं बन सकता है। मैं एक कोटेशन मोहन भागवत जी का पढ़ देता हूं, आप उसको सुन लीजिए। इट इज नॉट दैट सिंस इट्स अ हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड हियर। It is said Muslims cannot stay in India. It is not Hindutva. This statement was given by Mr. Mohan Bhagwat. Second क्वेश्चन पे आता हूँ, काउ स्लॉटर की बात कही, सुन लीजिए। काउ स्लॉटर कि ये कहना कि मुसलमान इंडिया में नहीं रह सकते इज नॉट हिंदुत्व। सेकंड सुनिए, सुन तो लीजिए शारदा साहब, असलियत सुनिए, सच्चाई सुनिए ना, सुनिए। आपको मैं असलियत सुना रहा हूँ, मैं असलियत सुना रहा हूँ, सुन लीजिए। लिसन में गलत क्या है? अब आप इसको सुनिए और समझिए। अब इसको अब आप इसको सुनिए और समझिए। रतन शारदा जी, he's coming up with a counter. अच्छा तो बताइए आपके हिसाब से सच्चाई क्या है? Yes. I tell you. Okay, go on, Mr. Ambedkar. Kindly listen. अरे पहले से कम ऑन, लिसन सेंटेंस का खुलासा कीजिए। आपको यस समझ आया क्या? बिल्कुल समझ में आया, सुन लीजिए। अरे सुनिए तो, आप सुनिए। टाइम प्लीज मिस्टर अम्बेडकर, सुनिए। गोलवालकर साहब ने अपनी पुस्तक में, अब सुन लीजिए ना, अब आप काउंटर नहीं, मैं रियलिटी सुना रहा हूं। सुनिए, गोलवालकर साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा, व्हाट Hindus don't waste your energy in fighting the Britishers. Save your energy to fight your internal enemies that are Muslims, Christians, and communists. So this is the base of this you know statement. it as well as I do, and that is the problem. So there will always be people who will want to dwell in the past but not tell your constituency that in 2018 Mohan Bhagwat, who is the current Sarsanchalak, very clearly said, as far as a bunch of thoughts goes, every statement carries a context of time and circumstance. His enduring thoughts are in popular edition, which we have removed all remarks that have a temporary context and retained those that will endure for ages. You will not find the Muslim is an enemy remark there. Bunch of thoughts के बारे में मोहन भागवत जी ने 2018 में साफ-साफ कहा था, despite the fact that even some of the more fundamentalist people in the Hindu
Hindu religion were upset with him. But he went out and he said it. But the point is, you don't like that. आप 2018 का उनका वाक्य नहीं बोलेंगे, आप गोलवलकर जी की bunch of thoughts से quote करेंगे because it suits you. हर्षवर्धन, okay. But Ratan Shah wants to respond. Then Harshvardhan Tripathi. bunch of thoughts भी नहीं है, पद्मजा जी आप नहीं जानती, ये बंदा 1939 की सुई अटकी है इसकी, जिस किताब को गुरुजी डिसोन कर चुके थे, उसके बाद में सरसंघ चालक पढ़े थे। ये अनपढ़ आदमी 1939 के बाद इन्होंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। गुरुजी 1971 क्लियरली सेड, जला पाएंगे इस पुस्तक, जला पाएंगे इस पुस्तक को बैन करा दीजिए ना, इस पुस्तक को बैन कराइए ना। मैं गुरुजी की बात, डू यू हैव द करेज, डू यू हैव द करेज टू बैन दिस, सुनना नहीं है, डू यू हैव द करेज टू बैन दिस बुक, do you have the courage to ban this book? Pawan Rao Ambedkar ji, you are only underlining the point that you want to always project things that are problematic and divisive. पूरी दुनिया बात कर रही है रिफॉर्म की, हिंदुइज्म will do one reform after another. You will come on TV and say, पर हिंदुइज्म में तो मनुस्मृति है। एक घर दिखा दीजिए जहां पर कोई भी मनुस्मृति को पढ़ता हो, कभी जिंदगी में पढ़ी हो। दुनिया भर के रिफॉर्म हो गए, आप हिंदुइज्म को मनुस्मृति से जोड़ेंगे। दुनिया भर के रिफॉर्म आरएसएस कर रही है, आप बार बार बंच ऑफ थॉट्स का वो एक वाक्य लेकर के आ जाएंगे। कैसे डायलॉग होगा सर जब आप डिवाइड करने में इतने जुटे हुए? बैन करा सकते हैं। Do you have the courage to ban this book? आप बाबा साहेब अम्बेडकर की थॉट्स ऑन पाकिस्तान हैदराबाद में जला सकते हैं तो जला दीजिए। आप बी आर अम्बेडकर की थॉट्स ऑन पाकिस्तान जला सकते हैं हैदराबाद में तो बताइए, बैन कराएंगे हैदराबाद में बी आर अम्बेडकर व्हाट ही सेड अबाउट पाकिस्तान एंड मुस्लिम्स? देन गेट दैट बैन फर्स्ट। But sir, these things have a context in the time that they existed, and you know it, sir, because you yourself are a professor. Do you have the courage to ban these books? But then you ban now. What Mr. Ambedkar said. Harshvardhan Tripathi. पद्मजा, देखिए पवन अंबेडकर वहीं पहुंच गए जहां इनको नहीं पहुंचना चाहिए। दुनिया बैन करने से, किसी के खिलाफ फतवा जारी करने से, सरतन से जुदा करने से आधुनिक दुनिया में आ रही है। पवन राव अंबेडकर पीछे जा रहे हैं। और यहां मैं एक बात कह दूं, जो अभी के सरसंघ चालक हैं डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, उनका एक बयान मैं आपको याद दिलाता हूं। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि केशव राव जो कहकर चले गए हैं हम उससे आगे उसके पीछे कुछ और नहीं कर सकते। डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक सरसंघ चालक थे। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो रेजिमेंटेड कहते हैं, जो कहते हैं कि संघ एक दायरे में बंधा हुआ है, उनको आईना दिखा रहे हैं मोहन भागवत। और इसीलिए इनकी मुश्किल बढ़ी है कि ये जिस दायरे में, जिस खांचे में राजनीतिक तरीके से संघ को बांधना चाह रहे थे, उसमें वो नहीं बांध रहे, इसलिए परेशानी, इसलिए कट्टरता और हावी करना चाहते हैं, कट्टर तरीके से बहस को चलाना चाहते हैं। बिल्कुल गलत। And this is exactly the kind of kattarta and fundamentalism which is great for both sides, politicians on either side of the political divide, but it is the people who will lose out. And if you really want to know how things from history can be misquoted in the current context, do go back, like I said, and read Partition of India or Pakistan. That is the book by Baba Saheb Ambedkar and what he had said at that time. We can't be quoting things out of context at a time when you're looking for reconciliation. All such efforts must be welcome. Thank you very much, gentlemen, for having joined me. The News Hour at 10 will be right back after the break.